OS plus MI. कर लिया नोट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now Yes, what ma'am. is COE? Our domestic income has three main components. First is COE, second is OS, and third is MI. Domestic income के तीन main components हैं. COE, OS, and MI. Now, what is COE? Compensation of employees. OS, operating surplus. And MI is mixed income. Right? COE stands for compensation of employees. OS, operating surplus. MI, mixed income. Note karo. Then we'll discuss all the components one by one. This is the second method of calculating national income, and the method is income method. But what is domestic income? What is domestic income? Basically, income earned through domestic product. Yes, income earned through domestic product. So whatever goods and services produced within the domestic territory, the income from that goods and services is called domestic income. कर लिया note ये? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. First is COE. It is compensation of employees. But your compensation of employees, this component always consider the terms related to your employer and employee. So इस टर्म के अंदर इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो सब इंक्लूड की जाती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पे. सो एम्प्लॉयर क्या करता है? एम्प्लॉय को या तो कैश में देगा कुछ या फिर इन काइंड में देगा. तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, wages and salaries in kind. These wages and salaries in kind is also known as perks or perquisites. Basically perks and perquisites जो है ये business studies में terms use होती हैं. Business studies में part B में जब आप लोग financial करोगे तो ये कुछ फाइनेंशियल मोटिव्स थे जिसके थ्रू हम लोग ये पूरा टॉपिक स्टडी करोगे लास्ट में ना आप लोग. तो देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है तो यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी टर्म्स है वो आती हैं, कुछ कैश में आती हैं और कुछ इन काइंड आती है. कैश तो समझ गए होगे, वेजेस और सैलरीज जो डायरेक्टली हम लोग पेमेंट करते हैं. इन काइंड पर्क्स और परक्विजिट्स क्या होते हैं? एनी काइंड ऑफ मेडिकल बेनिफिट, any kind of free meal, any kind of travel allowances, any kind of dearness allowance, right? Any kind of accommodation facility. तो कुछ भी जो apart from cash होगा, that is given by employer to employee, that will come under this category. Is it clear? Clear है बच्चों? क्या Yes, repeat ma'am. करूं? Yes, ma'am. Yes.
सो इसे नोट करो, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश आएगा, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड आएगा। एक टर्म है इसके बाद वो बताती हूँ कि कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी। Now there is always one term, employers contribution to SSS. It is Social Security Scheme. Here it is employer. Employers contribution to SSS. SSS means Social Security Scheme. See, if it is done by employer, then you will include it in COE. If it is done by employee, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस, यू विल नॉट कंसीडर इट इन सीओई, इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ सीओई। इज इट क्लियर? इफ इट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, मतलब देखो अगर ऑनर यानी जो बॉस है वो एम्प्लॉई के फेवर में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, किसी भी टाइप का सोशल सिक्योरिटी स्कीम में उसने इन्वेस्ट किया हुआ है लेकिन एम्प्लॉई के लिए, तो उसको तो हम लोग सीओई में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉई अपने बेनिफिट के लिए किसी भी टाइप का सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो सीओई का पार्ट नहीं माना जाएगा, वो उसकी पर्सनल सेविंग्स है जो कि वो कर रहा है, तो उसे हम सीओई में कंसीडर नहीं करेंगे। राइट बच्चों, क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस विल बी इंक्लूडेड but employees contribution to SSS will not be included in COE. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, so you can write it as a note, employers contribution to SSS will be included in COE but employees contribution will not be included. डन कर लिया नोट ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is OS. OS is what? Operating surplus. Operating surplus is the income from two components. So operating surplus is what? It is the income from property and entrepreneurship. You can write it operating surplus. It is the income from property and entrepreneurship. Property के अंदर we have three heads: rent, interest, royalty. And in entrepreneurship we have profit. Majorly we have profit. Profit के आगे parts है dividend, corporate tax, corporate saving, which is also called as undistributed profit or retained earnings. Right?
So these are the components. Sometime question में directly operating surplus होगा, sometime rent, interest, royalty, dividend होगा, corporate saving होगा. तो in that case आपको सारे components को combine करना है and you will get your OS. ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी प्रॉपर्टी का पार्ट है. प्रॉफिट में डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग, जिसे कॉर्पोरेट सेविंग को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं. नोट करो इसे. कर लिया बच्चों नोट? मैम 1 मिनट. ओके. Now it's done. Yes. Okay. Write another one point as a note. बच्चों अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है और डिविडेंड भी गिवन है, लिसन टू मी केयरफुली. इफ प्रॉफिट इज गिवन as well as dividend is given, then you will not consider the amount of dividend because dividend is the part of the profit. So सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट लेना है, डिविडेंड का अमाउंट सेपरेटली कंसिडर नहीं करना, राइट? तो राइट अ नोट. इफ प्रॉफिट as well as dividend, if profit as well as dividend given in the question, we will not consider the amount of dividend. We will not consider the amount of dividend as it is the part of the profit. As it is the part of the profit. कर लिया बच्चों नोट? यस मैम. मैम मतलब कि अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें प्रॉफिट दे रखा है तो और डिविडेंड भी हमें गिवन है, तो वो डिविडेंड उस प्रॉफिट में ऑलरेडी ऐड हो रखा होगा. हाँ, डिविडेंड ऑलरेडी उसमें ऐड हुआ होगा, तो हमने सेपरेटली आपने डिविडेंड नहीं कंसिडर करना, सिर्फ प्रॉफिट कंसिडर करना है. मैम अगर कॉर्पोरेट टैक्स सेविंग्स वगैरह वो लेंगे, मैं बता दूंगी इशिता, वो Okay. कंसिडर करेंगे सब कुछ. ठीक है, Yes. कंसिडर करेंगे. क्वेश्चन आएंगे ना तो बता दूंगी. सिर्फ एक प्रॉफिट और डिविडेंड का पार्ट माइंड में रखना. Okay. Okay. Now the last component is mixed income. Third one is mixed income. क्या होती है बच्चों mixed income? हाँ साची, what is mixed income? बोलो. Ma'am, income of the self-employed group. Yes, income of the self-employed group. कुछ ऐसे पर्सन्स हैं who do not maintain their account. अब बीइंग अ टीचर मैं अपना अकाउंट मेंटेन नहीं करती हूँ कि मैंने किसको पैसे दिए, किससे लेने हैं, वो सब मेंटेन नहीं करती हूँ मैं. कोई भी पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, those who are not maintaining their accounts, मतलब एक प्रॉपर अकाउंट हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे, as like in corporate sector we do. In that case, income of those persons will be recorded in mixed income. तो हम क्या करते हैं, उसकी सिर्फ एक ही कैटेगरी में हमने सबको अलग अलग तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि स्कूटर वाले की इनकम कितनी है, रिक्शा वाले ने अकाउंट नहीं बनाया,
कोई मैकेनिक है जो अपना अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा, ऑब्वियसली वो नहीं करेगा अपना अकाउंट मेंटेन, तो इन लोगों की इनकम को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितना भी लेबर क्लास वर्क है, या कई बार कुछ डॉक्टर्स है, टीचर्स है, लॉयर्स है जो अपनी इनकम का अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, इन दैट केस वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में आएंगे। तो सेपरेटली हम लोग इनको नहीं कैटेगराइज कर सकते, इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर मिक्स्ड इनकम, दैट्स इट। तो आपने मेजर उसको सिर्फ जो अमाउंट दिया होगा उसे प्लस करना, समटाइम्स ये गिवन भी नहीं होगा तो एज्यूम इट एज 0। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसे सिर्फ 0 लेना है और डायरेक्टली, नहीं तो पूरी एक स्टेटमेंट में आपको अमाउंट दिया होगा, इसके साथ कोई अलग से कोई कंपोनेंट नहीं है जो कि आप डिफरेंटली रिकॉर्ड करोगे, राइट? तो डोमेस्टिक इनकम यू विल गेट आफ्टर adding your COE, your OS and your mixed income. Clear है बच्चों? What is mixed income? Yes, ma'am. ठीक है, अब इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, इसे नोट कर लो। Mixed income is the income of self-employed people who do not maintain their account, like teachers, doctors, laborers, etc. Right? कर लिया बच्चों आपने? नोट कर लिया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now read this first question. Calculate NDP at FC. It means we have to find domestic income here. It is given in the question rent, royalty, interest. Ishika, किसके part है rent, royalty, interest? Ishika, Yes, ma'am. rent, royalty, interest किसके component है? Property. हाँ, property. तो it comes under the category of operating surplus, right? देखो ऑपरेटिंग सरप्लस अलग से मेंशन किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, इट मींस आपको ये सारे जो कंपोनेंट्स है उन्हें ऐड करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस यू विल गेट व्हेन यू ऐड रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। नेक्स्ट वी हैव वेजेस एंड सैलरीज। दिव्या, किसका पार्ट है वेजेस एंड सैलरीज? मैम सीओई। सीओई का। डू वी हैव अनदर टर्म रिलेटेड टू सीओई इन दिस क्वेश्चन? Yes. Yes, ma'am. Yes, what's that? Employer's contribution to SSS. We will consider it. So COE में you will get wages and salaries and employer's contribution to SSS, right? Okay, operating surplus का there is another part which is profit. तो profit भी आएगा because this is the income from entrepreneurship, right? Mixed income is already given as a main component. It is given. Depreciation भी given है, ठीक है? आप मुझे अपने अपने components बताते रहना. I am doing it on the board because I can't see the phone again and again. So first of all, NDP at FC is equal to COE plus OS plus MI. First question. COE में क्या क्या components है बच्चों? Wages and salaries plus employers contribution to SSS, right? अब OS का component, OS में क्या क्या है? Rent, interest plus royalty plus profit और mixed income as it is. That's it. यही है ना कुछ given question में? Wages and salaries का amount बोलना। अब ये एक बार ही तो मैंने लिख दिया है, तुम इतने सारे न्यूमेरिकल्स करोगे, बार बार तो नहीं लिखोगे, बस एक ब्रैकेट बनाना और सारे अमाउंट्स को ऐड कर देना। But when you do it in the paper, you have to mention each and every component, right? Yes, wages and salaries का amount बोलो कितना है? 800. 800. Employers contribution to SSS 200.
200. Rent 1400. 1400. Interest and royalty 1500 and 200. 200 plus profit 500. 500 and MI is directly I think it is 1000. Yes, ma'am. ओके बस ये सबको ऐड करोगे क्वेश्चन में हमें सिर्फ एनडीपी एंड एफसी फाइंड करना है ना तो यू विल डायरेक्टली गेट एनडीपी एंड एफसी फ्रॉम हियर क्लियर है बच्चों क्वेश्चन Yes, ma'am. कैलकुलेटेड और अगर कन्वर्जंस बोलेंगे कन्वर्टेड इनटू डोमेस्टिक इनकम और एनी अदर कन्वर्जन जीडीपी एट एमपी तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है एंड यू कैन डू द कन्वर्जंस दिव्या एंड प्रीत मैंने आप लोगों को अभी कन्वर्जंस नहीं करवाई कि बता रही थी बच्चों लास्ट क्लास में मैम फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया था। फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था बेटा वो लोग कॉन्सेप्ट बताया था कि क्रॉस से नेट पे जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन को हम लोग माइनस करेंगे बताया यस था मैम वो बता दिया था। Ma'am, दैट इज द बेसिक 5600 कॉन्सेप्ट हम 5600 आता है. ओके Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन do this one yourself. See, in this question, COE, compensation of employees, is directly given. Then you won't take wages and salaries. ठीक है उसमें wages and salaries दोबारा प्लस मत कर देना. अगर आपको मेजर कंपोनेंट्स के नाम गिवन होंगे लाइक OS, COE, तो उसके जो आगे की सब डिविजन्स है उसे कंसिडर नहीं करोगे. डायरेक्टली COE लोगे, वेजेस और सैलरीज को कंसिडर मत करना. डू इट कर लोगे सारे कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकालना है नेशनल इनकम इज व्हाट एनएनपी एट एफसी फर्स्ट यू फाइंड एनडीपी एट एफसी डोमेस्टिक इनकम निकाल लो जल्दी से निकाली नेशनल इनकम मैम ये वाला क्वेश्चन एक बार करवाना। ओके वीडियो पॉज बोलो बेटा क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में सीओई गिवन है यस मैम 800। 800 यस मैम। इसका कौन कौन से कंपोनेंट्स है रेंट है आई थिंक प्रॉफिट है और इंटरेस्ट है यस मैम। और कुछ है नो मैम। MI MI is given नो मैम। so it is 0
रेंट का बोलना है, अमाउंट कितना है? 200. 200. प्रॉफिट 300. एंड इंटरेस्ट 100. 100. So total is 1400. NDP at FC is 1400. Now we have to calculate national income. National income is NNP at FC. So NDP at FC given है, given to find. Conversions कर दो. Domestic से national plus NAFIA. That's it. Auto कोई conversion है ही नहीं. तो NNP at FC is what? NDP at FC plus NAFIA. NAFIA कितना given है? -20. -20. So 1380 is the answer. Okay. Clear बेटा? Yes, ma'am. Okay साची. मैम इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट सेंड कर दोगे? क्या हुआ इशिका? हुआ मैम नहीं अभी? नहीं, वो क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स चाहिए थे। मैं अभी इसकी एक पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगी, ठीक है बेटा? ओके मैम। हाँ, हो गया इशिका? क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैम कर रही हूँ। नहीं बेटा, मुझे कर तो रही है, ये बता क्लियर है? हाँ अभी किया नहीं, कर रही हूँ मैं। अच्छा, अभी तक किया ही नहीं है? कोई बात नहीं, कर लो, आराम से करो, समझ आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे दोबारा बताना, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। यस मैम। और कोई जिसको ना क्लियर हो या क्वेश्चंस बच्चों? Akshay, you are back again in the class, huh? नव्या क्लियर है बेटा क्वेश्चंस? Yes, ma'am. You were absent yesterday. I'll talk to you later. Okay, ma'am. Any other one who is having doubt in the questions? Sumit, Sumit तेरा माइक कभी भी ऑन नहीं होता। हो गया क्वेश्चन? दिव्या, प्रीत, अमूल्य क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, ये कन्वर्जन्स करवाए थे दिव्या एंड प्रीत मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में, Yes, ma'am. ठीक है ना? याद आ गया? सिर्फ एक ही, अगर इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो एक ही कोई चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है कि सबको ही चेंज करना है, जो एक रिक्वायर्ड है वही चेंज करेंगे। हो गया क्वेश्चन बच्चों ये वाला सबका? Yes. Yes, ma'am. Okay. Next is do this one. NIT given है, net indirect taxes, depreciation, NAFIA given है, rent, dividend, mixed income, saving of private corporate sector. तो बेसिकली प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर जो है बेटा, ये कॉर्पोरेट सेविंग्स ही है, ठीक है? इसे कंसिडर करेंगे। देन वी हैव इंटरेस्ट एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम फाइंड करो। डोमेस्टिक इनकम इज एनडीपी एट एफसी। डोमेस्टिक इनकम फाइंड करो बच्चों। CO is given, then find the components of OS. It is rent, then we have dividend, we have corporate savings, we have interest, then we have mixed income. In सबको plus करो, you will get your domestic income, then convert it into GNP at MP, right? Do it. सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला लगाना। अक्षय, तुम्हें तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के कन्वर्जन भी नहीं आते होंगे बेटा, फर्स्ट क्लास है ना?
बलप्रीत, दर्शप्रीत, क्वेश्चंस क्लियर हैं? Yes. ओके, मैम 4680 आंसर. हाँ 4680 है बच्चे. ओके. हो गया मैम. डन बच्चों. 4680 is the final Yes, ma'am. answer. That is GNP at MP. हो गया सबका? इशिका, इशिका हो गया बेटा? सांची, तुष्टि? मैम एक बार आंसर बताना. आंसर है सांची, फाइनल आंसर GNP at MP का आंसर है 4680. मैम हो गया. हो गया. सांची डन. मैम डन. यस मैम. ओके रिया. इशिका मैम हो गया. नहीं, मुझे साउंड से लग रहा है, तुम्हारी आवाज से लग रहा है ढंग से नहीं हुआ. क्या प्रॉब्लम आई है इशिका, बोलो. एक्चुअली ना मेरे को ना कोल्ड है, तो ना मुझसे ध्यान नहीं दिया जा रहा. ध्यान नहीं दिया जा रहा. मैम पर मैं कर लूंगी, मैं स्लो स्लो कर रही हूँ ना. अच्छा ठीक है, मैं फिर स्क्रीनशॉट PDF सेंड कर दूंगी इसकी. ठीक है. नेक्स्ट वन. In this question, you have to calculate operating surplus. Sales given है, COE, IC given है, rent given है, net indirect taxes, consumption of fixed capital. What is consumption of fixed capital, बच्चों? Depreciation. Depreciation. Those who don't know, please write it. Another name for depreciation is consumption of fixed capital or current replacement cost. ये दोनों अदर नेम है डेप्रिसिएशन के. कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करोगे? तुम्हें सेल्स दी हुई है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दी हुई है. GVO at MP निकालेंगे. हाँ, तो जीवीओ एट एमपी लगाओगे. चेंज इन स्टॉक नहीं है, जीवीओ एट एमपी लगा के जीवीए निकल आएगा. जीवीए मीन जीडीपी एट एमपी. जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करोगे एनडीपी एट एफसीज पे, देन यू कैन फाइंड ऑपरेटिंग सरप्लस. बोर्ड पे करो इस क्वेश्चन को. बोलो ट्राई कर लोगे या करो बोर्ड पे सॉल्व? मैम ट्राई. ट्राई करो. Yes मैम. बट जिन्होंने फर्स्ट मेथड नहीं किया वो प्रोडक्ट मेथड दे कांट डू इट. Ma'am, what is consumption of fixed capital?
Consumption of fixed capital, which I already told you, it is depreciation. Another name for depreciation, there is one more name. Current replacement cost is also depreciation. Consumption of fixed capital is also depreciation. Okay? So we have two other names for depreciation: consumption of fixed capital and current replacement cost. हुआ किसी का? मैम 100 आ रहा है. OS is, let me check notepad. But it is 500. Answer is 500 here. Okay, I'm solving it on the board. I have written the question here. First, we have given sales, IC. So इसमें दोनों मेथड साइमल्टेनियसली अप्लाई करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट मेथड as well as income method. So first you will apply the product method. You will get GVO at MP. First step, sales plus change in stock. Sales is 4,000. Change in stock not given, so it is 4,000. Second step, find GVA at MP, which is GVO at MP minus 80. So 4,000 minus 600. It is 3,400. GVA is also called as GDP at MP. Now we are going to the word GDP at MP to NDP at MP, because this is a domestic income. NDP at MP. Why I am calculating it? Because next form में हमें COE, rent और ये जो मिक्स इनकम अप्लाई करनी है, उसके लिए NDP at FC ही चाहिए. So gross से net पे गए. So market price से factor cost पे जाना है. Minus net. मैम हाँ जी. मैम बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा. बोर्ड क्लियर नहीं है मैम? नहीं मैम, मुझे लगा मेरा नेटवर्क इशू है, बच्चे भी नहीं बोल रहे हैं कुछ. बच्चों आपको बोर्ड क्लियर नहीं है? मैम ब्लर है. मुझे तो क्लियर आ बच्चों ये पता है कब से आप लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे. मैम अब ठीक हुआ बोर्ड. मैम क्लियर है. मैम क्लियर था पहले ही. मैं चेक कर रही हूँ बीच बीच में मैम. अच्छा एक्चुअली मैम मैं ना 2 बार पहले भी देखा, फिर मैंने पूजा मैम को भी ज्वाइन करवाया. मुझे लगा मेरा नेटवर्क इशू है. नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा सा पार्ट लिखती हूँ, देन आई विल कम बैक एंड जस्ट सी द बोर्ड कि इट इज क्लियर और नॉट. Okay. इट इज विजिबल. ओके मैम, ओके ठीक है मैम. अब ओके मैम. अच्छा, मैं क्वेश्चन अभी दोबारा शेयर करती हूँ बच्चों. मैंने इतना पोर्शन कर लिया. ठीक है. एनडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी minus depreciation minus net. So we have given GDP. GDP we have calculated. It is 3,400. बच्चों GD और GDP same thing है. Depreciation is what? Consumption of fixed capital 200 minus 500. 500. 700. 2,700 आ गया NTP and FC. ठीक है. यहाँ पे नोट करो, देखो 2,700 आ गया NTP at FC. नीचे और नजर आ रहा है ना, गेन कर देते.
NDP at FC is equal to what? COE plus operating surplus plus MI. NDP at FC is 2700. COE is 800. OS we have to find and MI. अब ये मत करना कि OS का रेंट किया हुआ है तो उसे कंसीडर कर लोगे. तुमने पूरा ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है तो रेंट की टर्म को OS का अगर कोई भी कंपोनेंट दिया उसे कंसीडर मत करना. MI is what? 1400. $2200 plus OS. So OS is 500. देखो क्लियर है क्वेश्चन? किसने बोला था 1000? बच्चे चेक कर लेना मिस्टेक अपनी. Yes, ma'am. अब जिन बच्चों ने प्रोडक्ट मेथड नहीं किया हुआ उनको ऊपर वाला पोर्शन क्लियर नहीं होगा बच्चों, लेकिन दो फॉर्मूलाज ही यूज होते हैं प्रोडक्ट मेथड को कैलकुलेट करते टाइम. सबसे पहले जीवीओ निकालना पड़ता है जिसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और उसके बाद यू विल गेट जीवी एट एमपी. जीवीओ एट एमपी में से माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन. जीवी एट एमपी इज सेम जीडीपी एट एमपी. So it is gross value added, which is also called as gross domestic product. कर लिया नोट? Yes, ma'am. Okay. Next question. In this question, we have to calculate NDP at MP. मतलब domestic income निकालते हो ना NDP at FC, तो we have to convert it into MP. Wages and salaries, net capital formation, export, import, gross capital formation, employers contribution to SSS. बच्चों हमेशा ध्यान से देखना कि वो employer है कि employee है. Sometimes हम लोग जल्दबाजी में गड़बड़ कर जाते हैं. So don't do that. काइंडली उसे अच्छे से स्टडी करना, पहले रीड करना कि इट इज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रेंट एंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ इसमें एक पॉइंट है, दैट इज यू हैव टू फाइंड डेप्रिसिएशन हियर. डेप्रिसिएशन गिवन है क्वेश्चन में? बोलो, क्वेश्चन रीड करो, देखो डेप्रिसिएशन गिवन है? No, ma'am. नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है, वो सिर्फ फाइंड करना पड़ेगा. सेकंड वाला पार्ट पढ़ो, नेट कैपिटल फॉर्मेशन इट इज 100 एंड देन फिफ्थ इज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इट इज 120. बच्चों ग्रॉस और नेट क्या देगा हमें? Depreciation. Depreciation. So this is the only point. First you have given gross capital formation. ग्रॉस माइनस नेट देगा ना डेप्रिसिएशन. हाँ बेटा, ग्रॉस माइनस नेट देगा ना डेप्रिसिएशन. हाँ ग्रॉस माइनस नेट, ठीक है, एंड नेट कैपिटल फॉर्मेशन. सो आई थिंक ग्रॉस कितना है? 120. यस मैम. डेप्रिसिएशन इज 20. बस एक ये पॉइंट याद रखना, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो. इसमें कोई फर्स्ट मेथड यूज नहीं होना, सिर्फ इनकम मेथड डायरेक्टली यूज करना है. सो हरी अप, डू इट.
मैम एक बार वापस बताना डेप्रिसिएशन कैसे निकालना। बच्चे डेप्रिसिएशन देखो, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है नेट कैपिटल फॉर्मेशन, मैंने बोर्ड पे भी किया देखो। नेट कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 100 और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 120। ग्रॉस और नेट मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, ग्रॉस और नेट दोनों के बीच का जो मेन कंपोनेंट है दैट इज डेप्रिसिएशन। तो तुम्हें जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और अगर डेप्रिसिएशन निकालना हो तो ग्रॉस माइनस नेट करोगे ना, तो ग्रॉस माइनस नेट विल गिव यू डेप्रिसिएशन। क्लियर बच्चे? यस वन मैम। टू वन जीरो। कितना आ रहा है अमाउंट करना पे? 1210। Let me check it. 1 2, yes, it is 1210. So NDP at MP is 1210. अगर किसी को क्वेश्चन करते हैं प्रॉब्लम आएगी प्लीज बता देना, बट गलत अटेम्प्ट कुछ मत करना। 1210 is the final answer. हम हाँ इसमें बोलो बेटा। डेप्रिसिएशन तो यूज ही नहीं करेंगे तो निकाल लेंगे। नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि डेप्रिसिएशन हम लोग इसको इस फॉर्म में, अगर तुम्हें मान लो यहाँ पे कह देते कि तुमने क्या निकालना है, जीडीपी निकालना है, तो इन दैट केस तो तुम डेप्रिसिएशन को यूज करते हैं ना। तो Yes, अगर ma'am. इसका कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आई हैव टू टेल यू बच्चे कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। अभी और भी कॉन्सेप्ट आएंगे वहां पे डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। Okay. यूज हो या ना हो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, बट आई हैव टू टेल यू कि इन दिस फॉर्म यू कैन आल्सो फाइंड द डेप्रिसिएशन। ये आगे पॉइंट्स तुम्हें ध्यान में रखने पड़ेंगे जब तुम फुल फ्लेज क्वेश्चन करोगे, ठीक है? मैम आंसर क्या है? 1210 इशिता। ओके मैम। दर्शप्रीत इस बारी न्यूमेरिकल्स में आंसर नहीं करना, क्या आंसर आया कि नहीं आया? दिव्यप्रीत हुआ? I'm solving. ओके, दिव्या क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम हो रहा है। रिया हो गया? Yes, ma'am. ओके, अमूल्य? Yes, ma'am. नंदनी हो गया बेटा क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके, गीतल? Yes, ma'am. डन? नवनीत? सांची स्पर्श? ये आपका हो गया। हो गया मैम। ठीक है, अक्षिता हो गया? यस मैम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन शो कर दूं? यस मैम। यस मैम। जिनका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लेना। कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी और डोमेस्टिक इनकम। चलो करो कैलकुलेट इसे, देखना इसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना।
कर लोगे? मैम ये कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, हाँ ये लेंगे बेटा। तो इट इज कॉर्पोरेट टैक्स। Undistributed profit, it means these are the corporate savings. हाँ बोलो बेटा। 19,800. 19,800, हाँ करेक्ट है, 19,800। डिविडेंड भी लेंगे 3,000, प्रॉफिट गिवन नहीं है इसलिए डिविडेंड लेंगे। मैम हो गया। हो गया, 19,800 इज द आंसर। यस मैम हो गया। ओके बच्चों, everybody has done it? Yes, ma'am. यस मैम। Seventh question. Ma'am, 298. Yes beta, 298 is the answer. टू 298 आंसर है बच्चों, एनडीपी एट एमपी। मैम हो गया। ओके गुड, सबका हो गया गया। मैम। जिनका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो। जीएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना है।
1030 आंसर है इस क्वेश्चन का। GN पेट MP 1030। बच्चों इनकम मेथड में इसके एग्रीगेट्स भी थे कुछ, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड PDI, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। These topics have been deleted from the course, so we will not do it. किसी के स्कूल में भी नेशनल इनकम स्टार्ट तो नहीं हुआ ना? No, ma'am. हमारा सेशन ही स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। Very good अक्षता, enjoy then. तो वो एग्रीगेट्स है इनकम मेथड के, वो नहीं करेंगे। अभी +1 का रिजल्ट आउट नहीं हुआ, देयर वाज सम नोटिफिकेशन। रिजल्ट आ गया पर अभी ऐसा स्टडी स्टार्ट नहीं करवाई। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी आज ही बने हैं। ओके, तो आप लोगों को पास कर दिया सबको? हाँ हाँ, मतलब बहुत ज्यादा ही फालतू के नंबर देके पास किए। हाँ, एक्स्ट्रा मार्क्स देके? हाँ, थोड़े बहुत दे दिए क्योंकि इंटरनल्स के जब मार्क्स दे ही देते हैं ना टीचर्स। आई थिंक ग्रेसिंग 30 मार्क्स तक का अलाउड था ना? हाँ। ऑलराइट, तो स्पर्श मतलब तो 12th में आ गया? हाँ, हुआ नहीं ये क्वेश्चन किसी का भी? अनव्या Done. डन मैम पहले ही हो गया था। ओके ओके, तो 1030 इज आंसर। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Those who have not done it, please take screenshot. मैम करवाना, आंसर नहीं आ रहा। करवा देती हूँ अभी। मुझे टर्म्स बोल देना प्लीज क्या क्या है, बिकॉज मैंने क्वेश्चन नोट नहीं किया हुआ। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? प्रॉफिट है, COE है, इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन, ओपनिंग, क्लोजिंग, सब्सिडीज, MI, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू SSS, नफिया, रेंट एंड डायरेक्ट एक्सेस। किसका आंसर नहीं आया? सांची ना? सांची तुम्हारा आंसर नहीं आया बेटा? यस मैम। क्या क्या किया है सांची इसमें? मैम NDPF। COE ले लिया? सुनो, COE लिया है 350? यस मैम। अच्छा, उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स ले लिए यहाँ पे, प्रॉफिट, इंटरेस्ट 320 हो गया। देन ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अलग से तो नहीं लिया ना? बोलो सांची, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सेपरेटली ऐड तो नहीं किया? ये कर दिया गलती से। Very good. And I told you whenever CO is given, don't take any sub component of this. कर दिया था ऐड? यस। और कुछ तो नहीं किया? OS में प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड रेंट लिया?
Yes, ma'am. ओके, मिक्स्ड इनकम ऑलरेडी गिवन है बेटा 150, Yes, ma'am. आ गया। एनडीपी एट एफसी को कन्वर्ट कर दो जीएनपी एट एमपी में। अब चेक करो, आंसर आ रहा है 1030। Yes, ma'am. आ गया बच्चे? Yes, ma'am. Okay. Now the next question. करो बच्चों इसको। जीएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। मैम 840 आ रहा है। इसका नाइन्थ का आंसर यस मैम। 850। मैम 850 डोमेस्टिक इनकम नहीं आ रही। हाँ 850 डोमेस्टिक इनकम आ रही है। मैम उसके बाद कह रही हूँ मैं। हाँ उसके बाद ही बता रही हूँ कि 850 आ रहा है जी। मैम डोमेस्टिक इनकम क्या आ रही है? डोमेस्टिक इनकम 850 आ रही है बच्चे। और मैम ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी इट इज आल्सो 850। मैम ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। आया किसी का आंसर? हाँ नव्य आ गया बेटा आंसर। मैम दर्श बोलो। यस मैम आ गया। कितना आया दर्शप्रीत? मैम 850। 8 मैम आ गया 850 आ गया। यस मैम। कैसे आ गया नव्य? मैम फर्स्ट domestic income is 850 ma'am, then to this plus depreciation to form into GNP at FC and plus NAFIA डेप्रिसिएशन कितना आया बच्चे? ma'am 10 10 कैसे आ गया? ma'am net capital formation minus gross fixed capital formation। अच्छा, लेकिन वो तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है और दूसरी टर्म नेट कैपिटल फॉर्मेशन है। चेक करना एक बार उसे। क्वेश्चन में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है और नेट कैपिटल फॉर्मेशन है। आर बोथ द टर्म सेम? जो मैंने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन था और नेट कैपिटल फॉर्मेशन था, बट देयर इज अ वर्ड फिक्स्ड।
तुम्हारा आंसर आ गया बेटा, तुक्का लग गया जो आंसर आ गया, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन जो है मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये ना बच्चों एक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर इन 3 टर्म्स का, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये कॉन्सेप्ट आपका एक्सपेंडिचर मेथड से उठाया हुआ है। तो जिनका आंसर आ गया है वो बाय मिस्टेक आंसर आ गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन तब भी 10 नहीं आएगा। अगर आपको वर्ड दिया हुआ है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट का वर्ड है नेट कैपिटल फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे ये वर्ड फिक्स नहीं है। इस वर्ड फिक्स को आप लोग एलिमिनेट करोगे कैसे? ग्रॉस, जब भी ये फिक्स वर्ड दिया होगा ना ग्रॉस के साथ, उसमें चेंज इन स्टॉक प्लस होता है, देन यू विल गेट ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। सो ये GFCF ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक will give you gross capital formation 100 plus 20 it is 120। अब आप लोग डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में से माइनस करेंगे नेट कैपिटल फॉर्मेशन, 120 माइनस 110 इट इज 10। ये एक्सपेंडिचर मेथड में फिर से डिटेल में करवाऊंगी। ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, अभी के लिए याद रखना कि जब भी ग्रोथ, देखो दोनों टर्म्स डिफरेंट है, तो तुम खाली डायरेक्ट बोथ टर्म शुड बी सिमिलर। अगर ग्रॉस और नेट में से माइनस करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो दोनों टर्म सिमिलर होनी चाहिए थी, बट इन दिस केस ग्रॉस फिक्स वर्ड इज देयर, फिक्स को एलिमिनेट करने के लिए चेंज इन स्टॉक को प्लस करना पड़ेगा, तो तुम्हारा GCF आएगा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आएगा, देन यू कैन फाइंड डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? अभी 90 ने जो किया होगा या जिन बच्चों का आंसर आया उन्होंने डायरेक्टली किया होगा ग्रॉस 100 में से। एक बात बताओ, जब तुमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तुमने क्या किया? ग्रॉस माइनस नेट कर दिया, तो 100 माइनस 110 किया, -10 डेप्रिसिएशन नहीं आ रहा था तुम लोगों का? माइनस 10 आ रही थी। -10 नहीं आ रही थी। -10 आ रहा था ना डेप्रिसिएशन, बट आप लोगों ने उससे जो भी कन्वर्जन होंगे +10 लेके किया होगा, है ना? यही किया था, तब तो ध्यान ही नहीं दिया होगा कि साइन भी है कोई प्लस माइनस का साथ में, क्योंकि तुम्हारा डेप्रिसिएशन कांट बी नेगेटिव, डेप्रिसिएशन नेगेटिव आ रहा था इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। एक्सपेंडिचर मेथड जब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम दोबारा मैं ऐसे बताऊंगी, इससे रिलेटेड 3-4 टर्म्स और है। फिलहाल के लिए ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, व्हेनेवर देयर इज वर्ड फिक्स्ड, उस फिक्स वर्ड को हमने एलिमिनेट करना होता है बाय एडिंग चेंज इन स्टॉक टू ग्रॉस, then you will get gross capital formation। अब gross capital formation दोनों के सेम है, ठीक है ना? दोनों टर्म अब सिमिलर हो गए। नाउ यू कैन फाइंड योर डेप्रिसिएशन, इट विल बी 10, +10। ठीक है? दर्शप्रीत, नव्या, जिनका भी आंसर आया बच्चों प्लीज इसे करेक्ट कर लेना। अब आंसर निकाल के देखो, अब आ रहा है। नफिया, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, डेप्रिसिएशन नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड द वे यू हैव डन इट फ्रॉम दैट वे नेगेटिव ओनली। इशिका, नाउ चेक इट, इज इट 850? मैम ये डेप्रिसिएशन लेना ही क्यों है ऐसे? डेप्रिसिएशन लेना ही क्यों है? कन्वर्जन है ना इशिका क्वेश्चन के अंदर। मैम डोमेस्टिक इनकम जो है वो NDPFC हुई ना, वो 850। तो हमें GNP निकालना है ना, मे बी क्वेश्चन के अंदर GNPFC निकालना है ना। हाँ तो मैम ग्रॉस और नेट का डिफरेंस तो डेप्रिसिएशन ही होता है ना। फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं हम लोग लेटेस्ट का, तो वो तो ग्रॉस और नेट ही है। ओ हाँ, ओके, यस। तुम डोमेस्टिक और नेशनल में कंफ्यूज हो रही थी। मैंने वो सिर्फ नफिया कर रही हूँ। हाँ नहीं बेटा, ग्रॉस और नेट भी कंसिडर करना है। अगर बोलो पूरा बोर्ड पे
कर दूं? क्वेश्चन तो मैंने लिखा है, बोलो। नहीं नहीं मैम, वो हो गया वो। क्लियर है बच्चों सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल वाला फिर से बताना एक बार। हाँ बेटा देखो इधर, यहाँ पे क्वेश्चन में इशिता गिवन था ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और यहाँ पे था नेट कैपिटल फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे फिक्स वर्ड एक्सट्रैक्ट, तो इस एक्स्ट्रा वर्ड को एलिमिनेट करते हैं हम लोग। ये ना एक्चुअली एक्सपेंडिचर मेथड का रूल है ये पूरा। तो एक्सपेंडिचर में हम लोग इस फिक्स वर्ड को एलिमिनेट करते हैं। उसको एलिमिनेट करने के लिए चेंज इन स्टॉक को प्लस करना पड़ता है। जब तुम चेंज इन स्टॉक को प्लस करोगी तब तुम्हें मिलेगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। यस मैम। GFCF मतलब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक प्लस होगा, यू विल गेट ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और नेट कैपिटल फॉर्मेशन दोनों सेम हो जाएंगे। अगर दोनों टर्म सेम है तभी आपको इनके बीच का डिफरेंस डेप्रिसिएशन मिलेगा, GCF एंड NCF। यस मैम। यस मैम। आगे आंसर अब सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now do this one, NNP at FC. See in this question operating surplus as well as dividend given. So mind these points please. Ma'am, 1640 आ रहा है। हाँ बेटा 1640। 1640 is the answer, NNP at FC. कितना मैम? 1640. ओके। ऑपरेटिंग डिविडेंड मत लेना। मैम ओल्ड एज पेंशन कंपनसेशन में आएगा ना? किसमें बेटा? कंपनसेशन। देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटली गिवन है या फिर उसके पार्ट्स गिवन? सेपरेट ही है। हाँ तो उसमें ओल्ड एज पेंशन नहीं आएगा। ओल्ड एज पेंशन क्या हो गया बेटा? ये ट्रांसफर इनकम है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। तो हम इसे ऐड नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने स्टार्टिंग में जब नेशनल इनकम डिस्कस किया था तो आई हैड डिस्कस फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम्स या पेमेंट्स। तो उसमें मैंने बताया था ओल्ड एज पेंशन जो है वो ट्रांसफर पेमेंट है, सो वो कंट्रीब्यूट नहीं करती गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोसेस में। ये यूनिलेटरल है, दैट इज व्हाई इसे कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज लेंगे और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है टू SSS वो लेंगे। मैम डन। मैम हो गया। हो गया बच्चों सबका? 1640 आंसर है।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. These 3 questions are your homework. Solve them at home. ठीक है? And take your doubts. Take a screenshot, please. इशिका तुम्हें मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप पे. Yes, ma'am. Please. Thank you. Rest of you, please take the screenshot. In the next class, we will start with expenditure method. Income method is over today. Thank you, ma'am. Okay, बच्चों, bye. Take care, everyone. Thank you. Thank you.